Question number 9 is, though very old, yet my grandfather is the complete head of the extended family. Here you have to find out if complete is the correct word to use in this sentence or not. अगर complete इस sentence में fit नहीं हो रहा है तो उसकी जगह ये 3 options आपको given है. You have to find out which 3 options from these can be replaced by complete in this sentence. अगर नहीं replace हो सकता है, then option 4 is your correct answer. Yes. इस सेंटेंस में कंप्लीट जो है उसकी जगह आपके पास 3 ऑप्शंस है रिप्लेस करने के लिए. अगर आप रिप्लेस नहीं कर सकते यानी कि कंप्लीट जो है वो सही है इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली एंड सिंटैक्स अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स, in that case fourth number option is your correct answer. That means no correction is required in the sentence. Try and answering this question. इसमें ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस कंप्लीट की जगह आप क्या लगा सकते हैं इन तीनों में से. एंड if none of the words can replace complete in this sentence, you have to choose the option number 4. Light नहीं है बच्चों. आप भी ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए Zoom क्लास पे. ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने. Okay, 9 number question we were doing yesterday. Here in this sentence, complete, the word complete has to be replaced or may be replaced by the 3 options. यहाँ 4 options given है, उसमें से 3 words हैं जो कि replace किए जा सकते हैं complete की जगह. But आपको इस sentence के grammatical representation को देखते हुए और syntax को यानी कि जो meaning convey किया जा रहा है उस सिंटेक्स को देखते हुए बताना है कि कंप्लीट की जगह क्या इन तीनों में से कोई वर्ड यूज हो सकता है. अगर नहीं, complete is the correct option for this, then you have to choose option number 4, that is no correction. Okay, yes, I have one. Manu has given me the answer. Any other student? Overall. I'm option 2. Option 2, okay. 3 students answered and 3 different answers. Anyone else who would like to try? Okay, yes, Abhishek has also answered. See, the meaning that is being conveyed in this message, यहाँ पर जो meaning convey हो रहा है ये कहना चाह रहे हैं कि जो grandfather है उनके वो पूरी family, पूरी extended family है उनके head है, right? So यहाँ पर complete head या absolute head या overall head या फिर undisputed head आएगा, ये आपको choose करना है option में. complete head का मतलब होता है वो पूरी तरह, कंप्लीट का मतलब भी वही हुआ, एब्सोल्यूट का भी मतलब वही हुआ, ओवरऑल का भी मतलब वही हुआ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनडिस्प्यूटेड? कंप्लीट, एब्सोल्यूट एंड ओवरऑल आर सिमिलर इन द मीनिंग. अनडिस्प्यूटेड का क्या मतलब हुआ? निसंदेह.
Yes, undisputed means you cannot have any doubt regarding those. एयर टाइप का मैम. आपके पास कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि वो डिसीजन करेक्ट है. सो नाउ टेल मी विच ऑप्शन कैन बी करेक्ट. यहाँ पर आपके ग्रैंडफादर अगर आपके एक्सटेंडेड फैमिली के हेड हैं, ठीक है. कंप्लीट, एब्सोल्यूट एंड ओवरऑल मींस यू हैव डन समथिंग इन फुल एक्सटेंशन, राइट. बट यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप एक पोजीशन बता रहे हैं दैट इज अपहोल्ड बाय अ फैमिली मेंबर. तो वो पोजीशन बताने के लिए देयर काइंड, मतलब आपको सिर्फ इतना बताना है कि वो वहां पर किसी को डाउट नहीं है इस बात का कि ग्रैंडफादर जो हैं वो उस पूरी एक्सटेंडेड फैमिली के हेड हैं. सो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर, अनडिस्प्यूटेड. Okay. Next is you have to find the meaning of the phrase, correct words for the phrase. Back to the drawing board. इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं. You will be given proverbs, idioms, and you have to write the answer. That is the correct meaning of that proverb, idioms, and phrases. Back to the drawing board. Option 2. Okay. I already have an answer from one student. Okay, I have two answers. Okay, you're following the pattern, I believe, for most of the people. 2 नंबर मैम, 2 नंबर, ऑप्शन नंबर 2. Okay, okay. See, back to the drawing board is something of a phrase used when you are when you are met with a dead end. मतलब आपको इसके आगे कोई रास्ता नहीं दिखता है. Then what do? Back to the drawing board means what? Starting from your already where you have started. जहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है वहां पे आप रिटर्न करके वहां से दोबारा स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने का. So option 2 is your correct answer. To solve a problem, go back to the root. Next question is you have to rearrange the sentence. This sentence you have to rearrange in a meaningful sentence. This means that for option A, in poverty, rural incomes. Option B, have to grow at a faster rate. Option C, making a significant dent. सी यहाँ पर जो ऑप्शन है, ऑप्शन से पहले वाला पार्ट उसका ऑप्शन है, राइट. दिस मीन्स दैट फॉर इज योर ऑप्शन ए, इन पॉवर्टी, रूरल इनकम. बी, option B, have to grow at a faster rate. Option C, and making a significant dent. Option D. So you have to rearrange these options in a meaningful sentence. Okay, I have one answer.
if you're not able to formulate a sentence, you can do what? Try the options. आप ऑप्शंस के थ्रू भी करेक्ट आंसर फॉर्म कर सकते हैं. जो भी ऑप्शंस है उन पर बैठा के देखिए सेंटेंस को. इफ यू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन that is conveying a meaningful sentence, then you can go forward with that. Number 2, ma'am. Sorry. 2. Okay, take 1 more minute, then we'll answer the question. Two. Option 2. Option 4, ma'am. Okay, I understood. Okay, the meaning that is being conveyed in this sentence is that if we want the poverty to be abolished, we have to do what? Increase, like rate of growth in the rural income should be increasing in the faster rate. Okay, तो यहाँ पर आपका जो मीनिंग रहेगा उसके हिसाब से ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट ए है, दिस मीन्स दैट for making a significant dent in poverty, rural income has to grow at a faster rate. Option B2 is your correct answer. Yes. Yes. Have to grow at a faster rate. Have होगा बच्चे. Because rural incomes हैं, that is rural. Yes, next question is similar to that, and try making it faster. Okay. Timing is also a significant factor. While expectations, this is your option 1 year after its official launch. Option B has largely escaped political synchronity. Option C has been scaled down the rhetoric. Option D. Option 1.
Okay, I have two answers, two different answers. Okay, another answer. Anyone else who would like to try? See, in these type of sentences, it is difficult to find out the meaning that is being conveyed because half of the time people don't understand what is being talked about. So what you have to do is you can go through with the options. ठीक है, आप options के साथ जा सकते हैं. One by one try करिए कौन सा meaningful लगता है. Understood? So if we go to option number 1, it is arranged in a similar manner. उसमें कोई सेंस नहीं बन रहा है. ठीक है, अगर आप सेंटेंस पढ़ के देखें तो. If we go option number 2, okay, option number 2 में जाते हैं. B option पहले है. 1 year after its official launch, while expectations has been scaled down, the rhetoric has largely escaped political synchronity. अब इसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा होगा पूरी तरह क्योंकि किस चीज के बारे में बात की जा रही है आपको नहीं पता. बट स्टिल द सेंटेंस लुक्स ग्रामेटिकली करेक्ट एंड सिंटैक्टिकली करेक्ट. Yes or no? So B option or 2 option is your correct answer. Understood? And one more thing, इसका एक और शॉर्टकट है कि आप जो पहला सेंटेंस का है, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, जो फर्स्ट रहता है ऑप्शन आपका, वो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको बता देता है कि कहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है. ठीक है, यू ओनली हैड 2 ऑप्शन, व्हाइल एक्सपेक्टेशन एंड 1 year आफ्टर इट्स ऑफिशियल लॉन्च, बिकॉज बाकी दोनों ऑप्शन में हैव और हैज पहले स्टार्ट हो रहे हैं. तो सी और डी से तो कभी स्टार्ट नहीं होगा. 2 ऑप्शन आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके थे. आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस थे जिसके साथ आप सेंटेंस बिठाकर कर सकते थे. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज अगेन, यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, यहाँ पर आपको एक प्रोवर्ब दिया गया है जिसका मीनिंग फाइंड आउट करना है आपको. टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. These are idioms, proverbs, that those meanings you have to find out. ये ऑप्शंस में पॉसिबल मीनिंग दिए गए हैं जो इस प्रोवर्ब या इडियम के हो सकते हैं. आपको चूज करना है which is the correct option. That means which is the correct meaning of the idiom or proverb. To turn over a new leaf. A. Okay. D. Okay. दो आंसर मिले, दोनों अलग अलग. Okay. 3 answers and 2 options has been chosen. You're not done. दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है. Yes, लगभग दोनों का मीनिंग सेम आ रहा है. बट व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग, ये आपको तब पता चलता when you were used to using these statements. To turn over a new leaf, ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. To change completely one's course of action. ठीक है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है कि आप जो कर चुके हैं, that is already been happened, you cannot do anything about that. Let the past go and make a new course of action for yourself. Understood? So option A is the correct answer. Okay, let's find out if you can find this one. A fair crack of the whip. A fair crack of the whip.
For those who don't know the meaning of whip, whip मतलब hunter होता है. A fair crack of the whip. D. D. Okay. A fair crack of the whip. Okay, both of you have chosen option D. What? वर्षा and राहुल, आप दोनों ही option D बोला था. Yes, ma'am. Okay, I have 4 answers and 2 options taken. A fair crop of the whip. क्या हो सकता है इसका? D. मैम हम ऑप्शन डी बोले हैं. Yes, that is what I am asking ना. तो यहाँ पर टाइम खत्म होते जा रहा है तो मैं बता देती हूँ इसका आंसर. A fair crack of the whip is a good luck check. That means if someone has gotten some achievement, ठीक है, without any efforts, then it is a proverb is used for those people. A fair crack of whip. B is the correct answer. हम इसको सेंटेंस में यूज कीजिए तो कैसे करें? I have never seen him work hard, but he achieved the position that I was working, so that I wanted for so many long time. It is nothing but a fair crack of whip. Understood? ओके मैम. कहा क्या कि मैंने इतनी देर से प्रैक्टिस की, इतने ईयर के लिए एफर्ट डाला, फिर भी उसको बिना एफर्ट के मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन उसको वो पोजीशन मिल गई. इट इज नथिंग बट अ फेयर क्रैक ऑफ विप. नेक्स्ट इज टू टॉक वंस हेड ऑफ. अच्छा, दिस इज इजियर. टू टॉक वंस हेड ऑफ. Okay. This is easier in regarding this proverb is similar to the one that is used in the Hindi language also. Right? So ऑप्शन डी और ए कोई एक. yes, so it is comparatively easy from the rest of the proverbs. Option D, ma'am. Okay, I have 5 answers. There are 6 answers and 2 options. D is the correct answer. Talk excessively. ज्यादा, ऐसे हिंदी में भी बोलते हैं ना कि बात कर करके मेरा सर खा गया. This is exactly that is used in English language also. To talk someone's head off मतलब excessively बात करना बहुत ज्यादा. Okay, next is to wrinkle over an ass's shadow. अच्छा, ये समझ मैम रैंगल मींस. हाँ, वही मेरे को पता था, इतना ही डाउट होगा, इससे वो मैं पूरा अच्छे से समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास. ये वाला कर लो. टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब ये नमक का एक कण. ठीक है. टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. Okay. Option A लग रहा है मैम. ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, कौन सा होगा?
to take with a grain of salt. इसमें कहना क्या चाह रहा है? This is also easier because it is similar to the हिंदी proverb. इसमें क्या हो सकता है ये आप ध्यान से सोचिए. Take with a grain of salt. मैम बी. आइदर सी और डी, बट ज्यादा चांस डी का लग रहा है. A or B. अच्छा, the problem is ना you are going too much of literal. बहुत ज्यादा लिटरल जा रहे हैं आप इसको लेकर, इसीलिए ऑप्शन ए एंड डी चूज हो रहा है. मैम सी ऑप्शन नो सी और मैम, हम बी बोले मैम. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, टू टेक विद टोटल डिसबिलीव. दैट मींस क्योंकि मैम ये सुपरस्टिशन का साउंड कर रहा है मैम, इस वजह से. इसका मतलब ये है कि जो आपको कहा जा रहा है या जो आपको पता चला है उससे आप विश्वास नहीं कर रहे हैं. जैसे नमक का एक कण उठाना, दैट मीन्स मन नहीं है लेकिन फिर भी मान रहे हैं. अब वो नहीं पता तुमने क्या लॉजिक लगा के किया, बट दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग, टू टेक विद टोटल डिसबिलीव. ओके, रियल लाइफ से जोड़े मैम और क्या. एक और सॉल्व कर लीजिए. मैम टू टेक विद टोटल डिसबिलीफ, सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपको जो बात बताई जा रही है उस पे आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, या कि कोई इंसान है जिसके ऊपर आप बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं. ओके मैम. To take the bull by horns. मैम इसको तो बोलेंगे पैर पे कुल्हाड़ी मारना. देख लो वो, इफ आई करेक्ट यू और इनकरेक्ट यू, वो मीनिंग फिर पता चल जाएगा. तो आप जो भी है, टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स. अच्छा, इसमें डी मैम. two of the options are actually similar. ऑप्शन सी. पकड़ना, ग्रास्प करना. मैम ऑप्शन बी, मैम ऑप्शन बी. ऑप्शन बी मैम. नहीं, ऑप्शन ए मैम, ऑप्शन ए. सी. ऊपर के ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए बी. वेरी मच सिमिलर. इसमें थोड़ा सा बस एक डिफरेंस है जिसकी वजह से एक ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, अदरवाइज टू ऑफ द ऑप्शंस आर एक्चुअली सिमिलर. ए मैम. Okay, the correct option is option B. B and C are हम बोले थे ऊपर के ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए बी होना चाहिए. B जो है उसका मीनिंग, हमको बी समझ ही नहीं आया. B का मीनिंग भी सिमिलर है. इसमें सिर्फ अंतर इतना है कि टू हैंडल इट बाय फियर्स अटैक जो है, इसमें अगर टू हैंडल द फियर्स अटैक होता, तो अगर आपकी तरफ जो भी डिफिकल्टीज आ रही है वो आप हेड ऑन फेस कर रहे हैं. हेड ऑन मतलब कि आप पूरी तरह उसको घबरा नहीं रहे हैं, सामने से उसको फेस कर रहे हैं. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब. तो इसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो यही है कि जो भी डेंजरस सिचुएशन है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां पर रिस्क है या फिर कुछ आपको करेजियस करना है, उस सिचुएशन को आप हेड ऑन फेस कर रहे हैं. दैट इज वाई यहाँ पर
बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन में बस वही है कि टू हैंडल इट बाय अ फियर अटैक, मतलब कि आप अटैक कर रहे हैं, लेकिन आप अटैक नहीं कर रहे हैं, आप अटैक को फेस कर रहे हैं। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या स्क्रॉल अप कीजिएगा, क्यों, कोई डाउट है? और कीजिए स्क्रॉल अप। ये वाला ना और कीजिए ना, करते रहिए थोड़ा, 3-4 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन किस पे? थोड़ा और स्क्रॉल अप कीजिए ना। हम ज्यादातर ऑप्शन 2 ही सही हो रहा है। अरे दैट इज नॉट अ पैटर्न बच्चे, वो ऐसे वो कोई पैटर्न नहीं है, वो मैंने अलग अलग वेबसाइट से चूज किए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने एक ही वेबसाइट से लिया है ये क्वेश्चन सारे। मैंने अलग अलग वेबसाइट पे देखे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद भी बनाए हुए हैं। अरेंज वाला जो क्वेश्चंस है वो सारा मैंने खुद बनाया हुआ है। मैं भाई जब क्वेश्चन में जरूर ऑप्शन सी सही हो रहा है।